students. A very charming good evening to all of you. How are you doing all? I think all of you are doing great in your life. I am also doing well in my life as usual as you are. Today is your lecture number 125 and we will continue narration topic. Earlier I have told you the way in which the narration came in your exam, and I have told you what is narration, what are the types of narration, and what are the things we have to remember while changing direct into indirect speech. Narration is also known as direct and indirect speech, or you can say reported speech. In your exam, question will come like this: read the following conversation and convert into indirect speech or report into indirect speech. You have to read whole conversation, then understand whether it is in a statement, whether it is in a question form, whether it is from command and request, or whether it is from exclamation and wishes. Then after you have to write it in a reported speech, or we can say indirect speech. It is of 4 marks which will come in your 10th class exam. So we have done three practice exercise, and later on I have also earlier discussed 3 types of these dialogue writing, and today we will do more practice exercise related to it. So firstly I will discuss the thought of the day. What is the thought of the day? Today thought is that education is the most powerful weapon in your hand to change the world. अगर आपको अपने वर्ल्ड को चेंज करना है, अपनी हर एक कंडीशन को चेंज करना है, चाहे वो आपकी कंडीशन गुड हो, बैड हो, वेदर यू आर इन अ पैथेटिक कंडीशन, वेदर यू आर इन अ बैड सिचुएशन, दैट only one weapon that is in your hand is education. शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो बेटा एक जादू कर सकती है और एक हर परिस्थिति में बदलाव ला सकती है, और पूरे वर्ल्ड को आप चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि एक शिक्षित होकर इंसान का देखने का नज़रिया, सोचने का नज़रिया, इट विल चेंज टोटली. एंड जैसे आप एजुकेटेड होते जाएंगे वैसे ही आप एक गुड सिटीज़न बन जाएंगे हमारी कंट्री के लिए, एंड हमारा होल वर्ल्ड भी एजुकेटेड पर्सन्स के साथ चेंज होता चला जाएगा. तो इन एवरी सिचुएशन रिस्पेक्ट फॉर एजुकेशन and do more and more study, get more and more knowledge in order to change yourself and to bring changes in whole world. पूरे वर्ल्ड में अगर चेंजेस लाना है, अपना एक पहचान बनानी है, तो उसके लिए एक मोस्ट पावरफुल वेपन जो है एजुकेशन, जो कि आप सभी सीख रहे हैं हर टाइम. एक लर्निंग स्टेज जो है जो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जो है ऑन गोइंग चलती रहती है. तो एजुकेशन एक ऐसा पावरफुल सोर्स है दैट powerful source can make anyone young with the thoughts, with a different kind of positive thoughts in their mind. So always be a focus on your study and give more and more attention towards education in order to bring the change. Chaliye, today our topic is narration. We are going to continue. Take 2 minutes. So this is a lecture number 125 and this is a dialogue writing. It is a dialogue between teacher and the student. Teacher and student के बीच में conversation है. मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि narration में पहले हमें मोड ऑफ द सेंटेंस को पहचानना है, उसके बाद चेंजेस करना है. पहला सेंटेंस है I want all the students to quietly do the work. टीचर ने कहा कि मैं चाहती हूँ सभी बच्चे क्वाइटली जो है अपना काम करें. दे डू देयर वर्क क्वाइटली. मीन्स मोड ऑफ द सेंटेंस की टीचर कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शन देती है. टीचर गुस्सा भी करती है, टीचर लेक्चर भी देती है, टीचर यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे रही है. उसके बाद स्टूडेंट ने बोला विल यू अलाउ अस टू गो फॉर गेम्स आफ्टर दिस. क्या आप मुझे अलाउ करोगे हमें कि हम इसके बाद गेम खेले जा सके. तो अब टीचर ने उनसे क्या बोला, उनसे पूछा है कि विल यू अलाउ. तो बच्चे जो है उनसे आस्क कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं. अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर विल आ रहा है तो क्वेश्चन जो है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है. व्हेन द क्वेश्चन स्टार्ट फ्रॉम द हेल्पिंग वर्ब यू हैव टू राइट द इफ एंड वेदर. आपको मेंशन करना है. उसके बाद आपको टेंस में चेंजेस करने हैं कि स्टूडेंट के बारे में बात हो रही है तो वो दे बन जाएंगे, और विल वुड में चेंज हो जाएगा, और दिस दैट में चेंज हो जाएगा. उसके बाद टीचर ने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फिनिश योर वर्क, कि पहले आप अपना काम पूरा करो. तो टीचर ने जब बच्चों ने क्वेश्चन पूछा तो टीचर ने उन्हें क्या दिया, आंसर दिया कि तुम पहले अपना काम फिनिश करो, उसके बाद स्टूडेंट भी तो रिप्लाई देंगे. स्टूडेंट ने कहा वी प्रॉमिस दैट
We promised that we have to finish we promised that we will finish our work first. तो बच्चों ने कहा कि भाई हम जो है अपना वर्क जो है पहले फिनिश करेंगे, तो स्टूडेंट जो है उन्होंने प्रॉमिस करा। तो इसमें मोड ऑफ द सेंटेंस क्या है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस है, और इम्पेरेटिव कई बार ऐसा होता है बेटा कि इम्पेरेटिव लिखा होता है कि हम ऐसा करेंगे, हम प्रॉमिस कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, डोंट वाले सेंटेंस है, और फिर आपको स्टार्टिंग में मेंशन करना होता है कि उन्होंने जो है वो प्रॉमिस करा, उन्होंने रिक्वेस्ट करा, उन्होंने एडवाइस करा, तो यू हैव टू मेंशन दैट। इफ देयर इज अ काइंड ऑफ एक्सक्लेमेशन सेंटेंस कि कोई गुस्से में बोल रहा है, कोई सैडनेस बोल रहा है, तो ही और शी एक्सक्लेम विद एंगर, एक्सक्लेम विद सैडनेस, जॉय, जो मैंने आपको चेंज करना पहले भी सिखाया। चलिए इसको नरेट करते हैं कि कैसे हम इसको रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले टीचर ने बच्चों को इंस्ट्रक्ट करा, तो यू विल स्टार्ट हियर द टीचर। जैसे हम सेड यूज करते हैं कि उसने ऐसा कहा, तो उसमें इंस्ट्रक्शन हो रही है, तो यू विल राइट इंस्ट्रक्टेड। द टीचर इंस्ट्रक्टेड, टीचर ने इंस्ट्रक्ट करा। क्या इंस्ट्रक्ट करा? आई वॉन्ट ऑल द स्टूडेंट टू डू द वर्क क्वाइटली, कि मैं चाहती हूँ कि सभी बच्चे जो है वो अपना काम क्वाइटली करें। किसको इंस्ट्रक्ट करा? द टीचर इंस्ट्रक्टेड द स्टूडेंट्स। उसके बाद मैंने आपको बताया कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जो है वो हटता है, अगर नहीं है तो यहाँ पर दैट लगाएंगे, दैट। अब वो चाहती है, तो टीचर जो है वो मान लीजिए लड़की है, तो यू हैव टू राइट शी, उसके लिए सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? अब शी। अब वांट जो है वो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दे रखा है, एंड यू हैव टू चेंज इन द पास्ट इंडेफिनिट टेंस, एंड विद पास्ट इंडेफिनिट टेंस what we will use? We use verb की second form, तो either you have to write wanted, that she wanted, she wanted, क्या बन रही है? She I want all the student to do work quietly, that she wanted, किनको? बच्चों को। बच्चों जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, और दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा? them, they, that she wanted them to quietly do the work, कि वो चुपचाप जो है अपना काम करे, quietly do the work, and full stop, that she wanted them to quietly do the work। अब स्टूडेंट ने उनके क्वेश्चन पे, मतलब जब उन्होंने ऐसा कहा तो स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा, विल यू अलाउ अस टू गो फॉर गेम्स आफ्टर दिस? तो देन द स्टूडेंट asked the question, then the student asked। अब क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, स्टूडेंट ने विल से स्टार्ट हुआ है, तो उसका मतलब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स देयर इज अ क्वेश्चन, तो यू हैव टू राइट द क्वेश्चन, will you allow us to go for games after this? The student asked। अब will से start होगा, तो if it start with helping verb, then you have to write if। और टीचर जो है वो she है, तो मैंने आपको बताया था जब भी क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस आपको होते हैं कि आप आज में चेंज करें, तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप इफ या वेदर से तो स्टार्ट करेंगे ही करेंगे, लेकिन फर्स्टली यू हैव टू राइट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखना है, क्वेश्चन नहीं कि पहले आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, नहीं, क्योंकि हम इसको स्टेटमेंट में चेंज कर रहे हैं, और स्टेटमेंट में चेंज कर रहे हैं तो वी हैव टू राइट द सब्जेक्ट फर्स्ट शी, एंड विल चेंज इनटू वुड, शी वुड। विल यू अलाउ अस टू गो फॉर गेम्स आफ्टर दिस? तो then the student asked if she would allow, और अब बच्चे जो है वो तो दे है, और दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? them, allow them to go for games after, अब this will change into that, after that, किसके बाद तुम आप अलाउ करोगे हमें गेम्स पे जाने के लिए। उसके बाद स्टूडेंट ने कहा, टीचर ने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फिनिश योर वर्क, कि पहले तो तुम्हें अपना काम जो है वो फिनिश करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फिनिश योर वर्क। तो टीचर ने इंसिस्ट करा, जैसे मान लीजिए मैं जोर दे रही हूँ, बेटा आपको पहले ये करना है, तो आई एम इंसिस्टिंग यू, तो उसके बाद द टीचर
इंसिस्टेड। अब हमने मोड पहचाना कि टीचर जो है वो क्या कर रही है, बच्चों पे प्रभाव डाल रही है या जोर डाल रही है उस चीज को करने के लिए। द टीचर इंसिस्टेड, किसको इंसिस्ट कर रही है, स्टूडेंट्स को इंसिस्ट कर रही है। द टीचर इंसिस्टेड दैट फर्स्ट, द टीचर इंसिस्टेड दैट फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ, अब वे है तो वे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दैम। फर्स्ट ऑफ ऑल दैम। अब ध्यान दीजिए सेंटेंस को देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फिनिश। अब हैव टू आ रहा है, व्हेन देयर इज अ प्रेजेंट परफेक्ट, हैज और हैव आ जाता है, यू हैव टू चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, दैट मीन्स यू विल राइट हैड टू। फर्स्ट ऑफ ऑल all of them had to। अब उनको फिनिश करना होगा अपना काम पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ देम हैड टू फिनिश। अब ध्यान दीजिए, मैं आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशन बता चुकी हूँ कि अगर दे है, उनका ऑब्जेक्ट दैम होता है और उनकी कोई चीज़ है, इफ देयर इज अ रिलेशन यू विल राइट देयर। और टीचर के लिए क्या यूज हो रहा है, शी। तो फिनिश their work. First of all, insisted that first of all them have to finish their work, कि वो अपना काम जो है वो फिनिश करे, फुल स्टॉप। उसके बाद बच्चों ने प्रॉमिस करा, बच्चों ने क्या प्रॉमिस करा, वी प्रॉमिस दैट वी विल फिनिश अवर वर्क फर्स्ट, कि हम प्रॉमिस करते हैं कि हम फिनिश करेंगे। उसके बाद द स्टूडेंट्स promised, द स्टूडेंट प्रॉमिस्ड, स्टूडेंट जो है वो प्रॉमिस कर रहे हैं, किसको प्रॉमिस कर रहे हैं, टीचर को। प्रॉमिस्ड हर दैट, अब वो करेंगे तो वो सब्जेक्ट हो गए, तो दे विल किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, वुड। फिनिश करेंगे अपना काम, तो दे का रिलेशन है, तो देयर वर्क, दे वुड फिनिश देयर वर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल दे वुड फिनिश देयर वर्क फर्स्ट एंड फुल स्टॉप। एक बार हम रीड करते हैं कैसा बना ये। I will use the highlighter so it could be more clear. देखिए, the teacher instructed the students that she wanted them to quietly do the work. Then the student asked if she would allow them to go for games after that. The teacher insisted that first of all of them had to finish their work. The students promised her that they would finish their work first. ठीक है बेटा, तो ये था नरेशन की जो डायरेक्ट बात हुई उनके बीच में। मान लीजिए मैंने घर आके रिपोर्ट करी या आपने घर जाके मम्मी को बताया, तो यू विल रिपोर्ट लाइक दिस। आप इस तरीके से टेंसेस में चेंजेस करेंगे, मोड ऑफ द सेंटेंस में चेंज करेंगे, क्वेश्चन है तो इफ एंड वेदर यूज करेंगे, और अगर सजेशन है सजेस्टेड, प्रॉमिस है तो प्रॉमिस, इंसिस्ट है तो इंसिस्ट, इंस्ट्रक्ट है तो इंस्ट्रक्टेड। दिस को आपको दैट में बदलना है, आपको फ्यूचर इंडेफिनिट दिख रहा है तो वुड में आप चेंज करेंगे। इसी तरीके से प्रेजेंट जो है वो पास्ट में चेंज हो जाएगा, तो आपको चेंजेस को भी ध्यान रखना है। चलिए अब हम दूसरी देखते हैं, दूसरा नरेशन देखते हैं जो कि किसके बीच में हो रहा है, फादर और सन के बीच में हो रहा है। अब देखिए क्या कह रहे हैं फादर और सन। फादर कहते हैं बच्चे से, Why did you go to the market today? तुम आज मार्केट क्यों गए? सन ने कहा, I had to buy some material to do my project. मुझे कुछ मटेरियल खरीदना था अपना प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। Father, who gave you the project? तुम्हें ये प्रोजेक्ट किसने दिया? Son, my science teacher gave the project. मेरी साइंस टीचर ने मुझे प्रोजेक्ट दिया। Father, do you need any money for it? क्या तुम्हें कुछ पैसे चाहिए इसके लिए? तो आपको कन्वर्सेशन समझ गए। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट हुआ वाई से, बच्चे से पूछा गया क्यों किया। अब इसका मतलब क्वेश्चन आस्क किया जा रहा है, ये आपका क्वेश्चन टाइप सेंटेंस है एंड इट इज स्टार्ट विद अ वाई। वाई आ रहा है तो वाई है तो ये WH फैमिली आ रही है, एंड विद WH फैमिली यू डोंट राइट इफ एंड वेदर। इफ एंड वेदर नहीं लिखना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आपको हटाना होता है, तो आप इसमें क्या लगाते हैं, दैट लगाएंगे। वाई से ही स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन वालों को भी स्टेटमेंट बनाना है, तो फादर ने सन से पूछा तो सन का सब्जेक्ट ही हो जाएगा। फिर डिड है जो कि आपका पास्ट इंडेफिनिट है, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म करके टुडे जो है वो आपका
आज का दिन जो है, टुडे जो है, वो आपका किस में चेंज हो जाएगा बेटा, दैट डे में चेंज हो जाएगा। अब बच्चे ने कहा आई हैड टू बाय, ये आपका बच्चे ने रिप्लाई दिया, क्वेश्चन पूछा गया तो उसका रिप्लाई दिया कि उसको जो है मटेरियल खरीदना, हैड टू बाय, उसको करना खरीदना ही पड़ेगा। अब ये पास्ट परफेक्ट में तो इट विल रिमेन सेम, हैड टू में ही रहेगा। तो ही हैड टू बाय सम मटेरियल टू डू हिज प्रोजेक्ट। फादर ने पूछा हु गेव, फिर WH फैमिली से स्टार्ट हो गया तो ये भी क्वेश्चन है। फिर बच्चे ने क्या करा, रिप्लाई किया, फिर क्वेश्चन पूछा गया और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ तो इफ और वेदर लगाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको हम कैसे नरेट करेंगे। लुक एट द आंसर। सबसे पहले फादर ने बच्चे से क्वेश्चन पूछा, द फादर asked son, the father asked son, फादर ने बच्चे से क्वेश्चन पूछा तो the father asked his son, अपने बच्चे से पूछा, the father asked his son। Look at the conversation, why से start हो रहा है तो you have to write that, his son that, और WH फैमिली इसमें कोई चेंज नहीं होता, एज इट इज आ जाएगी, वाई का वाई आ जाएगा। इसमें है क्वेश्चन है कि वाई डिड यू गो टू द मार्केट टुडे, तो डिड है तो इस किस में चेंज हो जाएगा बेटा, पास्ट परफेक्ट में, और बच्चे से पूछा गया तो सन के लिए क्या यूज होगा, ही। वाई ही हैड, और गो की थर्ड फॉर्म क्या होगी बेटा, गोन, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। वाई हैड ही गोन टू द market, and today will convert into that day, why he had gone to the market that day। ठीक है बेटा, और ये स्टेटमेंट बन जाएगी तो यू डोंट राइट क्वेश्चन मार्क, यू हैव टू राइट फुल स्टॉप। नाउ सेकंड, अब बोलता है, बच्चा बोलता है कि आई हैड टू बाय सम मटेरियल टू डू माय प्रोजेक्ट, कि मुझे अपना प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए कुछ मटेरियल जो है खरीदना पड़ेगा। तो बच्चे ने क्या करा, बच्चे ने फादर को रिप्लाई करा, सन replied that। अब ध्यान दीजिए, अगर आपको पास्ट परफेक्ट नजर आता तो इट विल रिमेन सेम, हैड है तो हैड ही रहेगा। सन रिप्लाइड दैट, सन के लिए क्या यूज होगा, ही, फिर हैड टू, he had to buy material to do, he had to buy material to do my project है। अब he के लिए, सन के लिए, he के लिए हो जाएगा, उसका रिलेशन हो गया तो he, and object is him, and if there is a relation then it is a his। he had to buy material to do his project, buy material to do his project and full stop। उसके बाद क्या हुआ बेटा, फिर पापा ने उससे फिर से पूछा, फादर ने, हु गेव यू द प्रोजेक्ट। अब फिर से WH फैमिली से स्टार्ट हो रहा है। देन द फादर अगेन आस्क्ड द क्वेश्चन, दोबारा जो है फादर ने क्वेश्चन पूछा, फादर देन आस्क्ड टू हिम। अब ध्यान दीजिए, बच्चे के लिए ही मैं बार बार सन रिपीट नहीं कर रही, तो व्हेन आई डोंट रिपीट द सब्जेक्ट अगेन एंड अगेन आई विल यूज द प्रोनाउन, एंड हिम में यूज कर रही हूँ, जो कि सब्जेक्ट ही है और ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। फादर ने दोबारा पूछा बच्चे से, अब देखो हु से स्टार्ट हो रहा है तो ये भी आपका WH फैमिली से स्टार्ट हो रहा है, तो आप दैट लगाएंगे, दैट, और फिर WH फैमिली एज इट इज आ जाएगी, दैट हु। अब यहाँ पर यह आपका गेव आ रहा है जो कि आपका पास्ट इंडेफिनिट है, एंड पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज हो जाता है बेटा, पास्ट परफेक्ट में। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी सेंटेंस हु से स्टार्ट होता है तो इफ द सेंटेंस स्टार्ट विथ हु देन सब्जेक्ट इज नॉट मेंशन, सब्जेक्ट मेंशन नहीं होता, ये ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है। तो आई विल राइट द हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि क्वेश्चन या WH फैमिली मिलेगी तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। लेकिन जब भी क्वेश्चन हु से स्टार्ट होता है, हु हैज़ गिवन यू, हु हैज़ डन दिस, तो इसमें सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट ने ही किया है और वो मेंशन नहीं होता। तो इसमें आ जाएगा हु हैड, और गिव की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गिवन, हु हैड गिवन द प्रोजेक्ट,
द फादर देन आस्क्ड हिम हु हैड गिवन द प्रोजेक्ट। फादर ने उससे दोबारा पूछा कि भाई ये प्रोजेक्ट किसने दिया है, हु हैड गिवन द प्रोजेक्ट। अब सन ने उनकी बातों को क्या करा बेटा, रिप्लाई करा। सन रिप्लाइड, सन ने क्या करा, रिप्लाई क्या करा, रिप्लाई करा कि मेरी साइंस टीचर ने मुझे प्रोजेक्ट दिया है। दैट, अब माई साइंस टीचर की जगह हो जाएगा, अब उसका रिलेशन हो गया तो हिज साइंस टीचर। अब ध्यान दीजिए, he was giving the answer gave। वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ रही है, पास्ट इंडेफिनेट है, तो यू विल राइट हियर पास्ट इंडेफिनेट विल बी चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। शन रिप्लाइड दैट हिज साइंस टीचर हैड गिवन, his science teacher had given the project, कि उसकी साइंस टीचर ने क्या दिया है बेटा, प्रोजेक्ट। his science teacher had given the project। son replied that his science teacher had given the project means जो पास्ट इंडेफिनेट था पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। उसके बाद उसके पापा ने फिर से उसको क्वेश्चन पूछा कि क्या तुम्हें कुछ पैसे चाहिए इसके लिए, तो उसके बाद फादर asked his son। अब ध्यान दीजिए, अब क्वेश्चन को आपको देखना है कि क्वेश्चन जो है वो डू से स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। एंड इफ क्वेश्चन इज स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब देन यू हैव टू राइट इफ एंड वेदर, तो यू विल राइट इफ ही। अब डू से स्टार्ट हो रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इट विल चेंज इन पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट, डू यू नीड एनी मनी फॉर इट, तो इफ ही, अब नीड की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी नीडेड एनी मनी फॉर इट की जगह बेटा क्या आ जाएगा, दैट। इफ ही नीडेड एनी मनी फॉर दैट। चलिए अब हम देखते हैं कि हमने कैसे इसको नरेट करा, कैसे हमने इसको रिपोर्टेड करा। एक बार लुक एट दिस कन्वर्सेशन। The father asked his son why he had gone to the market that day. Son replied that he had to buy material to do his project. Father then asked to him that who had given the project. Son replied that his science teacher had given the project. Father asked his son if he needed any money for that. So it is reported in indirect speech. I think it has been clear to you. Now look at the third conversation. That is a conversation between doctor and patient. Doctor और patient के बीच में क्या है बेटा, conversation है। डॉक्टर ने पूछा अपने मरीज से, पेशेंट से, What did you eat yesterday? तुमने yesterday में क्या खाया था? पेशेंट ने कहा I could hardly eat anything as I have a stomach ache। अब उन्होंने कहा डॉक्टर ने पेशेंट ने डॉक्टर से कहा कि मैं तो मुश्किल से ही कुछ खा पाता हूँ क्योंकि मुझे हमेशा पेट में दर्द रहता है। डॉक्टर ने कहा आर यू स्टिल हैविंग इट, कि क्या अभी भी आपके पेट में दर्द है? तो पेशेंट ने कहा एट दिस मोमेंट आई एम फीलिंग फीवर, इस समय जो है मुझे फीवर और वीक फील हो रहा है। डॉक्टर ने कहा यू मस्ट टेक रेस्ट, कि आपको रेस्ट लेना चाहिए। चलिए नाउ वी आर गोइंग टू डू द नरेशन ऑफ दिस चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो सबसे पहले डॉक्टर ने मोड पे पहचानिए, डॉक्टर क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट डिड यू ईट येस्टरडे। डॉक्टर आस्क्ड द क्वेश्चन टू द पेशेंट। पेशेंट से क्या पूछ रहा है कि भाई आपने कल क्या खाया था। फिर क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है WH फैमिली से, तो आपको इफ एंड वेदर नहीं लगाना, आपको सीधा क्या लिखना है बेटा, द डॉक्टर आस्क्ड पेशेंट। अब डॉक्टर जो है वो पेशेंट से पूछ रहा है कि डॉक्टर आस्क्ड पेशेंट। अब ध्यान दीजिए WH फैमिली से स्टार्ट हो रहा है तो यू विल राइट दैट, उसके बाद WH फैमिली का वर्ड आ जाएगा व्हाट। डॉक्टर आस्क्ड पेशेंट दैट व्हाट डिड यू ईट। अब डिड है पास्ट इंडेफिनिट, तो इट विल चेंज इन पास्ट परफेक्ट। व्हाट, अब पेशेंट जो है वो ही है या शी है, उसके अकॉर्डिंग यू विल मेंशन द सब्जेक्ट ही। अब पास्ट इंडेफिनिट विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, what he had। अब eat की थर्ड फॉर्म हो जाएगी eaten, सेकेंड फॉर्म होती है ate। what he had eaten, what he had eaten।
अब yesterday will change into the previous day. What he had eaten the previous day, what he had eaten the previous day, and full stop. Doctor asked patient that what he had eaten the previous day. Patient ने reply दिया, I could hardly eat anything as I have stomach. तो डॉक्टर को patient ने reply दिया that he could hardly eat anything as he. अब ध्यान दीजिए could आ रहा है, आपको कैन तो कुड में होगा, मे मिल जाए तो माइट में हो जाता है, कुड मिले या ऑट टू मिले तो इट विल रिमेन सेम, एंड अगर हैव नजर आए तो इट विल चेंज इनटू हैड. द डॉक्टर, फिर द पेशेंट रिप्लाइड, पेशेंट ने रिप्लाई करा, द पेशेंट रिप्लाइड, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है तो दैट आ जाएगा. अब पेशेंट के लिए क्या यूज होगा बेटा, ही, क्योंकि मैंने उसको ही बना रखा है, ही, और कुड एज इट इज रहेगा, ही कुड हार्डली, दैट he could hardly eat that he could hardly eat anything. अब ध्यान दीजिए जहां पर आ रहा है as I have stomach ache, as I have stomach ache. अब उसको क्या है, स्टमक एक है. अब ध्यान दीजिए as I have stomach ache कि उसको जो है पेट में जो हो रहा है वो क्या हो रहा है बेटा, दर्द हो रहा है. तो अब हैव है तो जिसका मतलब ये है कि वो प्रेजेंट कौन से में दे रखा है, सॉरी एज आई हैव नहीं होगा बेटा यहाँ पर, एज आई वॉज हैविंग, कि मुझे पेट दर्द हो रहा था, एज आई वॉज हैविंग. अब वॉज हैविंग दे रखा है तो आपको पता है कि ये आपका पास्ट कंटिन्यूस है. तो पास्ट कंटिन्यूस जब नरेशन में इनडायरेक्ट में जाता है तो इट विल चेंज इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. तो इसमें आएगा दैट ही कुड हार्डली ईट एनीथिंग एज ही, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड प्लस बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, दैट ही हैड बीन हैविंग, as he had been having, as he had been having stomach ache and full stop. उसके बाद है कि पेशेंट ने फिर रिप्लाई करा था, फिर डॉक्टर ने पूछा क्या तुम्हें अभी भी पेट में दर्द है, आर यू स्टिल हैविंग. द डॉक्टर ने उससे फिर से पूछा, देन आस्क्ड हिम, द डॉक्टर देन आस्क्ड हिम. अब इन्होंने बोला आर यू स्टिल हैविंग इट, तो अब क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो यू विल राइट हियर इफ, आर यू स्टिल हैविंग इट, इफ ही, अब आ रहा है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वॉज, ही वॉज स्टिल हैविंग. अब इट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट में. इफ ही वॉज स्टिल हैविंग दैट. अब पेशेंट ने रिप्लाई दिया एट दिस मोमेंट आई एम हैविंग फीवर एंड फीलिंग वीक. देन द पेशेंट रिप्लाइड, पेशेंट ने रिप्लाई करा, पेशेंट रिप्लाई दैट कि अभी जो है उसको फीवर और वीकनेस हो रही है, तो दिस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट. एट दैट मोमेंट आई एम हैविंग हो रहा है तो इसे हम आ रहे तो आई वॉज में कन्वर्ट हो जाएगा. एट दैट मोमेंट ही वॉज दैट he was, at that moment he was having fever and feeling weak. He was having fever and feeling weak. तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस इट विल चेंज इनटू द पास्ट कंटिन्यूस. फिर डॉक्टर ने क्या बोला,
डॉक्टर ने कहा यू मस्ट टेक रेस्ट। तो डॉक्टर ने उनको एक तरीके से एडवाइस दिया कि आप जो है वो क्या लो, रेस्ट लो। द डॉक्टर एडवाइस यू मस्ट टेक रेस्ट है, द डॉक्टर एडवाइज हिम। अब ध्यान दीजिए कि ये इंपैरेटिव सेंटेंस आ गया। imperative sentence में you have to write the mode, whether it is a request, suggestion, advice, then you have to write to plus verb की first form you have to change into infinitive। अब उसको advice दी तो अब object हो गया him, the doctor advised him, फिर to लगा दीजिए, to take rest, advise him to take rest, full stop। चलिए अब इसकी हम conversation को read करते हैं कि कैसे ये convert हुआ। I am using the highlighter। The doctor asked patient that what he had eaten the previous day. The patient replied that he could hardly eat anything as he had been having a stomach ache. The doctor then asked if he was still having that. Then the patient replied that at that moment he was having fever and feeling weak. The doctor advised him to take rest। Clear हुई conversation? We will see the last conversation that is between employee and the boss। एम्प्लॉय ने बोला बॉस को प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 2 वीक्स, 2 वीक्स लीव, मुझे 2 हफ्ते की छुट्टी चाहिए, मुझे प्लीज ग्रांट कीजिए। बॉस ने कहा व्हाई डू यू नीड इट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, कि तुम्हें इतने लंबे समय के लिए छुट्टी क्यों चाहिए। एम्प्लॉय ने कहा आई हैव टू विजिट माई एलिंग मदर, मेरे को अपनी बीमार माँ के पास जाना है। बॉस ने कहा ओके आई शैल ग्रांट यू लीव बट डू नॉट ओवरस्टे योर लीव, कि मैं आपको ग्रांट कर दूंगा लेकिन जितनी लीव दे उतनी ही रखनी है, उससे ज़्यादा ओवरस्टे आपको वहाँ नहीं होना है। तो एम्प्लॉय जो है वो बॉस को रिक्वेस्ट कर रहा है, एक तरीके से प्लीज आ रहा है वर्ड, तो व्हेन देयर इज अ प्लीज वर्ड दैट मीन्स ही वाज रिक्वेस्टेड। बॉस फिर वाई से मीन्स उससे क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद एम्प्लॉय ने रिप्लाई दिया, रिप्लाई देने के बाद बॉस ने क्या बोला, बॉस जो है वो एग्री हो गया, उसका मोड क्या है कि वो एग्री हो गया ग्रांट करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी नरेशन। The employee requested, किसको रिक्वेस्ट कर रहा है एम्प्लॉय, बॉस को। द एम्प्लॉय रिक्वेस्टेड अपने बॉस को, रिक्वेस्टेड हिज बॉस। अब प्लीज आ रहा है, अब प्लीज आ रहा है, दैट मीन्स इट इज इंपेरेटिव सेंटेंस एंड यू आर राइटिंग रिक्वेस्टेड, और इंपेरेटिव सेंटेंस यू हैव टू चेंज इनटू इंफिनिटिव बाय राइटिंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। रिक्वेस्टेड हिज बॉस टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, ग्रांट, टू ग्रांट। अब मी एम्प्लॉय के लिए क्या हो जाएगा, हिम, ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम, टू ग्रांट हिम 2 weeks लीव। grant him 2 weeks leave, full stop। अब बॉस ने तो ये को एम्प्लॉय ने बोला, रिक्वेस्ट करा, उसके बाद बॉस ने क्या बोला, क्वेश्चन पूछा। द बॉस आस्क्ड, बॉस ने जो है क्वेश्चन पूछा उससे, बॉस आस्क्ड हिम। अब क्वेश्चन किससे स्टार्ट हो रहा है बेटा, WH family से, when it will start with WH family you will write that and start with that WH family, that why do you need it for such a long time। तो do आ रहा है तो present indefinite है तो it will change in past indefinite, तो why he और past indefinite में verb की second form, why he needed, सेकेंड फॉर्म हो गई। इट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट में, वाई ही नीडेड दैट फॉर सच, वाई ही नीडेड दैट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। उसके बाद एम्प्लॉय ने बॉस को क्या दिया, उसको रिप्लाई करा। द एम्प्लॉय रिप्लाइड दैट
The employee replied that कि I had to visit my ailing mother, तो have to आ रहा है, present perfect है तो it will change in past perfect, had to में हो जाएगा. और employee के लिए क्या लगेगा? He, that he had to visit. my ailing है तो employee की क्या हो जाएगी? His to visit his ailing mother. Full stop. उसके बाद है बॉस ने कहा कि मैं ठीक है तुम्हें ग्रांट कर दूंगा. देन द बॉस एग्रीड. बॉस जो है वो अब एग्री हो गए तो मोड ऑफ द सेंटेंस क्या हो गया कि वो जो है वो एग्री हो गए. क्या करने के लिए? ग्रांट के लिए. टू ग्रांट उसे. और एम्प्लॉय के लिए क्या होगा? ऑब्जेक्ट क्या होगा? हिम. टू ग्रांट हिम लीव. अब ध्यान दीजिए वो उन्होंने ये भी बोला डू नॉट ओवरस्टे योर लीव. मतलब उनको इंस्ट्रक्शन भी दी है. इंस्ट्रक्शन भी दी है बट इंस्ट्रक्टिंग. अब इंस्ट्रक्टेड जो है मोड ऑफ द सेंटेंस हो गया व्हेन देयर इज एडवाइस, देयर इज अ प्रॉमिस, देयर इज अ रिक्वेस्ट, देयर इज अ सजेशन, देयर इज अ इंस्ट्रक्शन. तो यू हैव टू चेंज इनटू इंफिनिटिव. टू प्लस वर्क विद. बट इंस्ट्रक्टेड हिम ऑब्जेक्ट हो गया. फिर टू लगा के आपको लिखना है. टू लगा के क्या लिखना है? जैसे डू नॉट है तो डू नॉट इट विल चेंज इन नॉट टू. तो इसमें इंपैरेटिव का दूसरा भी आ गया. एक तो टू लगा के होते थे और डू नॉट किस में चेंज हो जाता है? नॉट टू. नॉट टू ओवरस्टे. अब उसकी एम्प्लॉय की रिलेशन हो गया हिज लीव. नॉट टू ओवरस्टे हिज लीव. चलिए देखते हैं कैसे इसकी रिपोर्टेड स्पीच हुई. The employer requested his boss to grant him 2 weeks leave. The boss asked him that why he needed that for such a long time. The employee replied that he had to visit his ailing mother. The boss agreed to grant him leave but instructed him not to overstay his लीव. तो इसमें हमने मोड पहचाना कि इंस्ट्रक्शन है, यहाँ एग्री हो गया है, यहाँ पर जो है रिक्वेस्ट की गई है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर रिप्लाई दिया गया है. फिर जो रूल्स मैंने आपको बताए हैं, स्टेप्स बताए, यू हैव टू रिमेंबर वाइल चेंजिंग दैट. वी हैव डन लॉट ऑफ प्रैक्टिस. In next video session, we will do more practice related to sample paper, how the questions came in your CBSE board exam. So we will discuss that question in next class. So it is all